یہ جو نیا اسپیل ابھی شروع ہوگا یہ 17 سے لے کر 22 تاریخ تک یہ بارشیں ہوں گی، اور اس میں ایک تو بارشیں زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن ہم کسی بھی ٹائم انٹینس فلڈنگ کی اور کلاؤڈ برسٹ کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جس طرح سچویشن چکوال میں ہوئی اور جس طرح سچویشن بنیر اور باجوڑ میں ہوئی، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. کلائمیٹ چینج فینومینا کی وجہ سے ہمیں ایکسٹریم ایونٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو عوام سے گزارش ہے کہ ان کو بھی احتیاط برتنی چاہیے. ہمارے جو ایڈوائزریز ہیں، ہمارے جو اقدامات ہیں جن کو ہم اینٹیسپیٹری ایکشنز کہتے ہیں، ان پہ وہ عمل کریں. اور آگے کا جو اسپیل ہے وہ انہی علاقوں میں بھی ہے، اور یہ ٹریول کرے گا نارتھ سے ٹورڈز ساؤتھ، پنجاب کے علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں، پھر یہ ویسٹ ورڈز بلوچستان میں بھی جائے گا. سب سے پہلے میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مانسون سیزن جو ہے یہ پچھلے سالوں سے تقریباً 20 سے 25% زیادہ ہیوی ہے. اگلی 24 گھنٹے کے اندر ہم فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ ایک نیا مانسون کا اسپیل پاکستان میں انٹر ہو چکا ہے، اور اس کی جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کا ایک نیا فنومینا ہوا ہے جو بیسکلی آپ کا جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اندر مین افیکٹ ہو رہا ہے. یہ پہلے یوں کی مانسون ہمارے ملک میں ہمیشہ آتے رہے تھے، بٹ یہ کلاؤڈ برسٹ کی طرح سے وہ اتنا پانی پھینک دیتے ہیں بارش میں جو پورے ایک سال سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو لو لائنگ ایریاز یا جو لوگ اس واٹر ویز کے اندر جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس جگہوں سے جب ایڈوائزریز یا لوکل گورنمنٹ میں یا ٹی وی کے اندر یہ انڈیا میں کی جب ایڈوائزریز آتی ہیں تو آپ اپنے ان گھروں سے پکے علاقوں میں اور ہائی گراؤنڈز میں شفٹ کر جائیں. جی شکریہ. میں ادریس مسعود ہوں، ممبر ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں. یہ جو سچویشن ہوئی ہے یہ کل سے ڈیولپ ہوئی ہے، جس میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور ایکسیسو رینز ہوئی ہیں ہمارے اپر پارٹس میں، پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا کے اپر پارٹس میں، جس میں بنیر، باجوڑ اور شانگلہ، مانسہرہ اور بٹاگرام میں کافی نقصان ہوا ہے. سب سے زیادہ نقصان بنیر میں ہوا ہے، جس میں بنیر اور باجوڑ میں، جس میں 303 ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں انفارچونیٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ریسکیو سروسز نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے. اوور 1000 دے ہیو ریسکیوڈ. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں پرٹیکولرلی غزر کے اشکمن اور یاسین ویلیز میں بھی بڑی سخت فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، جس میں انفارچونیٹلی 8 ڈیتھس کنفرم ہے. کے پی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت 55 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں، تو ان کی بھی تلاش جاری ہے. انفارچونیٹلی جو بھی ہماری ریسکیو سروسز، ہم نے یہاں سے پاکستان آرمی کی جو اسپیشلائزڈ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہوتی ہے وہ ہم نے موبلائز کر چکے ہیں. ہم ادھر سے ہمارے اس وقت ادھر بھی ٹیم گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ساتھ انگیج کر رہی ہے. وہاں پہ ریلیف کی ریکوائرمنٹس کا تعین کر رہے ہیں. ریلیف ہم نے بھی سپورٹ کیا، لیکن خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی خود بھی اپنی بڑی کیپیسٹی ہے جو کہ ادھر ریلیف پہنچا رہی ہے. پاکستان آرمی بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، سرچ اینڈ ریسکیو میں بھی اور ریلیف میں بھی. پاکستان آرمی نے اپنے راشن سے وہاں پہ فوڈ آئٹمز دیے ہیں. این ڈی ایم اے نے بھی نان فوڈ آئٹمز جس میں ٹینٹس، بلینکٹس اور جنریٹرز اور واٹر پمپس، واٹر پیوریفیکیشن سسٹمز ہیں، وہ ہم نے روانہ کر چکے ہیں. میڈیسنز منسٹری آف ہیلتھ کے تھرو ہم نے ایمرجنسی میڈیسن کٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کو اور گلگت بلتستان کو پہنچا دی، وہ روانہ کر چکے ہیں. وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. یہ اسپیل جو ابھی ہوا ہے اس میں یہ کلاؤڈ برسٹ تھا، یہ بہت انٹینس رینز اس نے اور بہت زیادہ فلیش فلڈنگ کریٹ کی، جو کسی بھی رسپانس ایجنسی یا کسی بھی گورنمنٹ کی کہ بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو 100% کنٹرول کیا جا سکے. لیکن کوششیں جاری ہیں، جتنا بھی نقصان کم سے کم
हो सकता है उसकी कोशिशें सारी, इट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन अप्रोच दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम दिस नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे चेयरमैन एनडीए में प्राइम मिनिस्टर रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहिबान से, चीफ मिनिस्टर साहिबान से, प्रोविंसेस के साथ, और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो रेगुलरली एनालिसिस और फीडबैक्स दे रही है कि क्या क्या हो सकता है और कहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी ये प्रेडिक्शंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के जो वो है वो हमने पहले से बताए हुए थे। अभी भी आप के तवसत में बताना चाहूँगा, आवाम को अपील करना चाहूँगा, अपनी रिस्पांस एजेंसीज़ को भी, कि हमारी ऐप जो है एनडीए में ऐप उसको डाउनलोड करें। उसमें हम आवरली अपडेट देते हैं और आवाम को ये भी अपील करना चाहेंगे कि वो सेफ़ ट्रैवल करें, वो टूरिज़म इस तरह के टाइम में न करें जिसमें प्रेडिक्शंस हुई हों। इसलिए मैं अभी बताना चाहूँगा कि ये जो नया स्पेल अभी शुरू होगा ये 17 से लेकर 22 तारीख तक ये बारिशें होंगी, और उसमें एक तो बारिशें ज़्यादा होने का अंदेशा है, लेकिन हम किसी भी टाइम इंटेंस फ्लडिंग की और क्लाउड बर्स्ट को रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह सिचुएशन चकवाल में हुई और जिस तरह सिचुएशन बुनेर और बाजोड़ में हुई, ये कहीं भी हो सकती है। क्लाइमेट चेंज फिनोमेना की वजह से हमें एक्सट्रीम इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, तो आवाम से गुजारिश है कि उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे जो एडवाइजरीज़ हैं, हमारे जो इक़दामात हैं जिनको हम एंटिसिपेटरी एक्शंस कहते हैं, उन पे वो अमल करें, और आगे का जो स्पेल है वो इन्हीं इलाकों में भी है, और ये ट्रैवल करेगा नॉर्थ से टुवर्ड्स साउथ, पंजाब के इलाकों में, सिंध के इलाकों में, फिर ये वेस्ट वर्ड्स बलूचिस्तान में भी जाएगा। तो ये सारे इलाके जो हमने जिनका अपनी एडवाइजरीज़ में ज़िक्र किया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ भी हम इन कांटेक्ट हैं, प्रोविंसेस को भी हमने हाई अलर्ट पे किया हुआ है। इसी तरह हम रिवर्स और जो स्ट्रीम्स हैं, जो हमारे जो नॉर्मल रिवर्स और हमारे जो डैम्स हैं, उनकी सिचुएशन को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त जो नौशहरा है उस पे मीडियम टू हाई फ्लड सिचुएशन है, जहाँ पे लोगों को एहतियात करनी चाहिए, वो नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाएं। उधर अगर वो उसके करीब रह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के उनकी एडवाइस के मुताबिक उधर से एवेकुएट हों और एहतियात बरतें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये मानसून सीज़न जो है ये पिछले सालों से तकरीबन 20 से 25% ज़्यादा हैवी है, और ये आगे वाले दिनों में भी हम देख रहे हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से नेशनल थिंक टैंक है डिज़ास्टर को हैंडल करने को, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर पराचा है, और मेरे साथ पीएचडी और एक्सपर्ट्स हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की 156 यूनिवर्सिटीज़, बट दुनिया की तकरीबन 400 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जिस तरह के आपको पता है कि एनडीएमए का काम डिज़ास्टर्स को प्रिडिक्ट करना भी है, जो हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसी तरह इस साल भी हमने मानसून को प्रिडिक्ट किया था, और उसी तरह हम देख रहे हैं कि मानसून का जो सीज़न है वो अनफोल्ड हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डीआरआर सोसाइटीज़ बनाई हैं, और अभी भी जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा में बनूर के इलाके के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे ये कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, बनूर की यूनिवर्सिटी और उनके वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर जमशेद साहब तकरीबन 60 बच्चों की टीम के साथ रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। जो हमने देखा है कि जो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर क्यों ये ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा वो फैक्टर है जो हमारे जो घर हैं वो उस तरह रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स के नहीं बने हुए, और बहुत से कच्चे घर हैं जिनकी छतों गिर जाती हैं, और मासूम बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा फोत होते हैं। तो अगर आप पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने नॉर्दर्न एरिया से लेके पाकिस्तान के जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो हाई माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्लोबल दुनिया में इन इलाकों में
क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम शेयर करते हैं अपनी एडवाइजरीज़ के अंदर और आवाम तक, और यहाँ पे सेमिनार्स और यूनिवर्सिटीज़ में हमने DRR सोसाइटीज़ में वो कम्युनिटीज़ में जाके ब्रीफ करते हैं। ये तो डिज़ास्टर आने से पहले के हम पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि इस डिज़ास्टर को अब क्या करना चाहिए, अगले 24 घंटे के अंदर हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि एक नया मानसून का स्पेल पाकिस्तान में एंटर हो चुका है, और उसकी जो आगे हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का एक नया फिनोमेना हुआ है जो बेसिकली आपका जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर मेन इफ़ेक्ट हो रहा है। ये पहले यूं कि मानसून हमारे मुल्क में हमेशा आते रहे थे, बट ये क्लाउड बस्ट की तरह से वो इतना पानी फेंक देते हैं बारिश में जो पूरे 1 साल से ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ है, जो लोग उस वाटर वेज के अंदर जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने उस जगहों से जब एडवाइजरीज़ या लोकल गवर्नमेंट में या टीवी के अंदर ये NDMA की जब एडवाइजरीज़ आती हैं तो आप अपने उन घरों से पक्के इलाकों में और हाई ग्राउंड्स में शिफ्ट कर जाएं। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि आप अगर दरियाओं के करीब हैं तो आपका घर है तो उसके अंदर भी आप अपना कीमती सामान लेके अपने किसी रिश्तेदार या रिश्तेदारों के पास शिफ्ट कर जाएं जब ये एडवाइजरीज़ हों। और ख़ास तौर पे मैं टूरिस्ट हज़रात पे करता हूँ, बिकॉज़ जो लोकल हैं वो तो उस क्लाइमेट को, उस एरिया की इंटीग्रेसीज़ को जानते हैं। ख़ास तौर पे टूरिस्ट को हम एडवाइस करेंगे जो NDMA का पाक NDMA अलर्ट ऐप है उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें। उससे आपको आने वाले 24 घंटे 48 आवर्स के अंदर एडवाइजरीज़ हैं कि लाइकली कहाँ कहाँ वो लैंडस्लाइड्स होंगी जहाँ पे आप फंस सकते हैं। और इसी तरह आपसे गुजारिश है कि जब आप इन दरियाओं की तरफ जाएं तो ये वाटर फ्लो इतना जल्दी आता है कि आपको वो रिएक्शन टाइम ही नहीं देता, तो आप ये दरियाओं के अंदर बैठ के नाश्ते और खाने ना खाएं, ठीक है, बिकॉज़ बहुत सी हमारी जो डेथ्स हो रही हैं या इंजरीज़ हैं वो इस किस्म की छोटी छोटी सी अगर हम प्रिकॉशन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो कीमती जानें बच सकती हैं। NDMA में इसी तरह हम जिस तरह आगे फोर्सी के हैं, ये दुनिया की ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जो आवाम है, इसी तरह जो होटल मैनेजमेंट है, उनको भी चाहिए कि वो अपने एक आध वेटर को या अपने अमले को रखें, और जब इस तरह वो देखते हैं कि बारिश हो रही है तो अपने जो लोगों को वहाँ से, अगर आप समझते हैं कि आपका होटल या ऐसी जगह रेस्टोरेंट है जहाँ पे फ्लड आ सकता है, तो आवाम को वहाँ से अपने को खाना भी ना सर्व करें और उनको वहाँ से एडवाइस करें कि निकले। तो ये छोटी छोटी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हम अपनी कीमती जानें और नुकसान से बचा सकते हैं।